اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے۔ ہم دن رات میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کیا ہے، نماز۔ دیکھیے نماز جو ہے وہ ہمارے دین میں اس کا سب سے بڑا مقام جو ہے وہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کی بنیادی ارکان 5 ہے۔ کتنے؟ 5 ارکان ہیں، بنیادی ارکان۔ اس میں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے، وہ تو سردیوں کا موسم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے یا اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو ایک درخت کی ٹہنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اس کو ایسے ہلا دیا تو اس کے سارے پتے جو ہے وہ زمین پہ گر گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام آپ دیکھیے، اگر آپ دن رات میں 5 مرتبہ باجماعت نماز ادا کرتے ہو، اپنے وقت پہ ادا کرتے ہو تو اس انسان کی گناہ بھی اس طرح جو ہے وہ گر جائے گی جس طرح اس درخت کے پتے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ہم مسلمان ہیں تو ہم دن رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز اپنے اوقات میں ہو، اپنے ٹائم پہ صحیح وقت پر ادا ہو تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ ہمارے گناہ بھی اسی طرح جو ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے سب سے اہم عبادت ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یہ 5 ارکان دین اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ تو نماز ویسے دن رات میں ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان 5 نمازوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے ادا کریں، صحیح طریقے سے ہم پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو نماز پڑھتے وقت نماز کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے فرائض ہوتے ہیں، نماز کے واجبات ہوتے ہیں، نماز کے مستحبات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز کو انہی آداب کے مطابق ہم پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارا نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو آج ہم نماز کے فرائض ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 13 فرائض ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں نے آپ سے کہا تھا کہ 7 فرائض ایسے ہیں جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں اور 6 اس کے اندر ہے، یعنی نماز شروع ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ جو نماز سے باہر ہے ان کو شرائط کہتے ہیں اور جو نماز کے اندر ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان۔ تو آج ہم بھی نماز کے فرائض بیان کرتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض 13 ہے۔ نماز کے فرائض 13۔ نماز کے فرائض 13 ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 7 نماز سے پہلے اور 6 نماز کے بعد، یعنی
जो नमाज से पहले उसको शराइत कहते हैं, नमाज के शरत। जो नमाज के अंदर है उसको नमाज के अरकान कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो 7 शरात बयान करते हैं जो नमाज से पहले है, ठीक है। नंबर 1, बदन का बदन का साफ होना। जब आपका बदन साफ न हो तो आपका नमाज सही नहीं होगा। तो नमाज के शुरू करने से पहले, नमाज के पढ़ने से पहले आपका बदन साफ होना चाहिए। पहला क्या है? बदन का साफ होना। दूसरे नंबर पर है कपड़ों का साफ होना। कपड़ों का साफ होना। आपके कपड़े साफ हो। जब आपके कपड़े साफ ना हो, आपके कपड़ों पर गंदगी है, तो फिर आपका नमाज सही नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप नमाज पढ़ते हो तो साफ सुथरे कपड़ों से आप नमाज पढ़ें, ठीक है। गंदे कपड़ों में आपका नमाज नहीं होगा। तो पहला क्या है? बदन का साफ होना। दूसरे नंबर पर कपड़ों का साफ होना, ठीक है। तीसरे नंबर पर जगह का साफ होना। जगह का साफ होना। साफ होना। जगह कहाँ? साफ होना। साफ होना। जहाँ आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है, जो जगह, जिस जगह आपके नमाज का हो वो जगह साफ होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जगह साफ ना हो तो आपका नमाज नहीं होगा। तो तीसरा शर्त ये है, ठीक है, कि आपका जगह साफ हो। जहाँ आप नमाज पढ़ते हो वो जगह साफ होना चाहिए, ठीक है। तो चौथे नंबर पर क्या है? सत्रे औरत। सत्रे औरत। औरत। सत्रे औरत। सतर छुपाने को कहते हैं, औरत फर्ज, यानी वो जगह जो इंसान के बदन में फर्ज है उसका छुपाना नमाज में फर्ज है, ठीक है। सतर छुपाने को कहते हैं, औरत फर्ज को कहते हैं, ठीक है। तो अब सतर औरत, अब मर्द के कहां से कहां तक है और औरत की कहां से कहां तक, ठीक है। तो जो मर्द होता है उसके फर्ज नाप से लेके घुटनों तक, ठीक है, नाप से लेके घुटनों तक, ये जगह मर्द का फर्ज है, इसका छुपाना लाजिमी है, ठीक है। और औरत का पूरा बदन उसका फर्ज छुपाना फर्ज है, लेकिन इसमें 3 जगह जो है उसका छुपाना लाजिमी नहीं है, ठीक है। वो क्या है? चेहरे का छुपाना लाजिमी नहीं है, और हाथ का, और इसी तरह पाँव के, ठीक है, इसका छुपाना लाजमी नहीं है। बाकी पूरा बदन औरत की जो है वो फर्ज है, ठीक है। औरत जब भी नमाज पढ़ती है तो उसका दुपट्टा नरम नहीं होना चाहिए कि जिससे उसकी बदन नजर आए, ठीक है। दुपट्टा ऐसी मोटी हो कि उससे उसका बदन जाहिर ना हो, ठीक है। तो सत्र औरत सत्र किसे कहते हैं? छुपाने को। औरत फर्ज। मर्द का फर्ज छुपाना कहां से कहां तक है? औरत का कहां से कहां? मर्द का नाक से घुटनों तक, औरत का पूरा जिस्म जो है वो फर्ज है, उसका छुपाना लाजिमी है, सिवाय 3 जगहों के जिसका छुपाना लाजिमी नहीं है। चेहरा, हाथ और पाँव, ये 3 जगह लाजिमी नहीं, ठीक है। नंबर 5, वक्त की पहचान। नंबर 5 क्या है? वक्त की पहचान। वक्त की पहचान। वक्त की पहचान। पहचान। जिस वक्त का नमाज आप पढ़ते हो वो वक्त आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मसलन आप जोहर का नमाज पढ़ते हो तो आपको जोहर का वक्त मालूम हो कि मैं जोहर के नमाज जो है पढ़ता हूँ, और इसी तरह जो है आपको असर का टाइम टेबल मालूम है कि मैं किस टाइम का नमाज पढ़ता हूँ, वो टाइम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप असर की जगह जोहर का नमाज पढ़े, जोहर की जगह जो है आप सुबह का नमाज पढ़े, इस तरह आपका नमाज सही नहीं होगा, ठीक है। नंबर 6, तो यहाँ पे 5वें नंबर पर क्या है? वक्त की पहचान
लाजिमी और जरूरी है। ठीक है, वक्त की पहचान क्या है? लाजिमी और जरूरी। ठीक है। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करना। किबले की तरफ रुख करना। किबला की तरफ रुख करना। तरफ मुंह करना। जब भी आप नमाज पढ़ते हो तो आपका रुख जो है किबले की तरफ हो। ठीक है, तो फिर आपका नमाज, अगर आप किबले की तरफ से आपका रुख चेंज हो तो फिर आपका नमाज नहीं होगा। तो छठे नंबर पर क्या है? किबले की किबले की तरफ आपका मुंह हो। ठीक है, किबले की तरफ रुख करना या मुंह करना। ठीक है। नंबर 7, दिल में नमाज का इरादा रखना। ठीक है, जब भी आप नमाज पढ़ते हो तो इरादा करके आप वो नमाज पढ़े। ठीक है। अब ये तो शराइत हो गए। क्या हो गए? शराइत। ये नमाज से पहले। अब जो नमाज के अंदर है वो चीजें अब हम बयान करते हैं। ठीक है। नंबर 8, इसको मैंने कहा था, इसको अरकान कहते हैं। ये नमाज के अंदर है, ये नमाज के अरकान में से। ठीक है। नंबर 8, तकबीर तहरीमा। तकबीर अल्लाह अकबर को कहते हैं, तहरीमा हराम। इस पहले तकबीर से जब हम अल्लाह अकबर करते हैं तो इस पहली तकबीर की वजह से हम पे सारी चीजें हराम हो जाते हैं। ठीक है, हम नमाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, कोई चीज का भी नहीं सकते, किसी का जवाब भी हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पे ये पहले तकबीर की वजह से हराम। तकबीर अल्लाह अकबर को कहते हैं, तहरीम हराम को कहते हैं। पहले तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। ठीक है। नंबर 9, नंबर 9, क़ियाम। क़ियाम या खड़ा होना। क़ियाम या खड़ा हो। क़ियाम भी खड़े होने को कहते हैं। ठीक है, क़ियाम या खड़ा होना। आप खड़े होके नमाज पढ़े, जब आप बैठ गए या सो गए बिला उज़र आप बैठ गए, आपका नमाज सही नहीं हो। जब उज़र हो, कोई बीमारी है, कोई उज़र है, फिर आप बैठ सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सही सलामत हो, आपकी कोई बीमारी आपके बदन में नहीं है, कोई उज़र नहीं है, तो आप बैठ के नमाज पढ़े, फिर आपका नमाज सही नहीं होगा। तो नमाज के लिए खड़ा होना ये क्या है? ये फर्ज है। ठीक है। नंबर 10, नंबर 10, किरात पढ़ना, कोई चीज पढ़ना, ये नमाज में फर्ज है। ये ना हो कि आप नियत बांध ले और चुपचाप खड़े रहे, तो ये नमाज बगैर किरात के सही नहीं होता। ठीक है। नंबर 11, नंबर 11 क्या है? रुकू। नंबर 11 क्या है? रुकू। ठीक है, रुकू झुकने को कहते हैं। जब आप रुकू करते हो तो ऐसे झुके, इसको क्या कहते हैं? रुकू कहते हैं। ठीक है, ये नमाज में फर्ज है। अगर आपसे रुकू रह गई तो फिर आपका नमाज सही नहीं होगा। तो 11वें नंबर पर है रुकू करना। ठीक है, रुकू करना। नंबर 12, ठीक है, 2 सजदे करना। ठीक है, 2 सजदे करना ये फर्ज है। 2 सजदे ये क्या है? नंबर 13, कायदा आखिरा। कायदा बैठने को कहते हैं आखिरा। आखिर में जब हम बैठते अत्तहियात पढ़ते हैं तो ये कायदा फर्ज है, इसको कायदा आखिरा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कायदा आखिरा जो है ये नमाज में फर्ज है। तो ये नमाज के फराइज है। ठीक है, नमाज के फराइज कितने थे? 13। तो मैंने कहा कि इन 13 फराइज में 7 फराइज नमाज से बाहर और 6 नमाज के अंदर। जो बाहर है उनको शराइत कहते हैं, जो अंदर है उसको अरकान कहते हैं। जो बाहर है उसको क्या कहते हैं? जो अंदर है उसको क्या कहते हैं? अरकान। उनमें पहले नंबर पर बदन का साफ होना,
दूसरे नंबर पर कपड़ों का साफ होना, तीसरे जगह नंबर पर जगह साफ होना, सत्य औरत, चौथे नंबर पर सत्य औरत, पांचवें नंबर पर वक्त की पहचान, छठे नंबर पर किबले की तरफ मुंह करना, सातवें नंबर पर दिल में रास्ता रखना, आठवें नंबर पर तकबीरे तहरीमा, और नंबर 9 क़याम या खड़ा होना, क़याम या खड़ा। क़याम अरबी में और खड़ा होना उर्दू में, ठीक है। नंबर 10 क़िराअत पढ़ना। नंबर 11 रुकू करना, रुकू करना। नंबर 12 12 2 सजदे करना। और नंबर 13 क़ायदे आखिरा। ये नमाज के फराइज है, ठीक है। इसी तरह नमाज के वाजिबात भी है, वो भी 13 है। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर हम नमाज के वाजिबात पढ़ेंगे। तो ये नमाज के फराइज सबको याद हो गई, ठीक है। इसको याद भी करे और इस पे अमल भी करे इंशाअल्लाह। अपने नमाजों को सही करे। जब हम अपने नमाज को अपने शरायत अरकान इन सब चीज़ों के तरीके के मुताबिक हम पढ़े तो हमारा नमाज सही होगा। जिस तरह मैंने हदीस आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस जो है मैंने आपको बनाया कि जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी को दरख्त के एक टहनी को हिलाया, उसके बाद उसके सारे जो है पत्ते झड़ गए, गिर गए। तो इस तरह अगर हम नमाज पढ़े तो हमारी गुनाह भी इसी तरह हमारे यानी हमारे बदन से हमारे ये सारी गुनाह इसी नमाज के वजह से जो है गिर जाएगी। तो नमाज की अहमियत भी बहुत सारी। नमाज जो है वो दीन का सुकून है, ठीक है। और नमाज जो है वह शैतान का मुंह काला कर देता है। ये वो नमाजें होते हैं जो जिसमें सजदा सही हो, जिसमें रुकू सही हो, जिसमें जो है हुरूफ तलफ़ुज़ जो क़िराअत हम पढ़ते हैं, जब ये नमाज सही क़िराअत के मुताबिक हो तो फिर ये नमाज होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि नमाज जो है वो मुसलमान और काफिर के दरमियान जो है ये फ़र्क होता है, ठीक है। काफिर जो है वो नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान जो है वो दिन रात में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ठीक है। तो कोशिश करे नमाज बजमात पढ़ा करे, ठीक है। उसकी अदायगी, उसके अरकान, इन सब चीज़ों का ख्याल रखे तो इंशाअल्लाह हमारा नमाज भी सही होगा और इससे हमारी सारी गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएगी, ठीक है।